It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes. Hello, everyone. Hello to all. So, everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio, video clear है क्या? Audio, video is clear to everyone. So, I hope you all are good and preparing well for your exams. और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट और ईएससी या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांजिशन कर्व. आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सुपर एलिवेशन. तो सुपर एलिवेशन का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू अटेन द सुपर एलिवेशन. तो द फर्स्ट स्टेप वाज द रिमूवल ऑफ द कैम्बर. सेकेंड स्टेप में आप बोलते थे कि सर वी कैन रोटेट द पेमेंट अबाउट द इनर एज, वी कैन रोटेट द पेमेंट अबाउट द सेंटर लाइन, और जिससे आपने सुपर एलिवेशन को अटेन किया था. नाउ वी विल सी द अंडरस्टैंडिंग व्हाई द ट्रांजिशन कर्व इज रिक्वायर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते. यू कैन फाइंड अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक एज वेल एज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली दोनों तरीके से ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक दैट इज द ट्रांजिशन कर्व. और इसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आज की अपनी इस क्लास में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस क्लास. तो आई एम Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of various states. My teaching experience in the field of GATE and ESE is more than 5 years. I am having 3 years research experience too.
और सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड आरसीसी। दीज आर माय सब्जेक्ट दैट आई विल कवर फॉर द एग्जाम गेट, ईएससी और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम होने वाले, एई, एडब्ल्यू और एसएससी, जेई। द डिस्कशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। This is my referral code, that is KKS10. With the help of this code, you all can activate your free plan. तो अगर अब तक आपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को एक्टिवेट नहीं किया, जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप and use this code, that is KKS10, to activate your free plan. In the free plan of Unacademy, what you will get, special classes will be there, quizzes will be there, live test series will be there, and you can also participate in the Unacademy Combat. तो आप इन सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय डाउनलोडिंग द ऐप एंड यूज दिस कोड, दैट इज KKS10, टू एक्टिवेट योर फ्री प्लान. If you want to start your preparation with an academy in a systematic way, in an organized way, then you can plan your subscription. Two types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In the case of Plus, what you will get? So live classes will be there. आप regular batches की live classes को attend कर सकते हैं. Crash courses will be there. Weekly test will be conducted for you. Doubt solving sessions. Every fourth class on the Plus platform will be related to your doubt. Subject we are going to cover in both language, English and Hindi. There will be no language barrier. जिस भी language में आप comfortable हो, you can start your discussion in that particular language. Rank improvement batches will be there. You will also find the regular batches for GATE and ESC. तो GATE और ESC के लिए मिलने वाले हैं आपको regular batches. These are the features of the Plus subscription. One more option is available, that is Iconic. In the case of Iconic, what you will get? So whatever features I have explained for the Plus, they are already included in the case of Iconic. In additional to Plus features, you will get study planner will be there, personal coach, personal mentor will be there for you. Study material will also provided to you in the case of Iconic. Study booster sessions will there and personalized test analysis will be there. So these are the features of Plus and Iconic subscription. You can plan as per your need which suits you more. And this is the detail of the latest batch जो आपका batch start हुआ for GATE 2022 and for GATE 2023. So yes, you all can join these batches using this code. Just complete your subscription process for GATE 22 and GATE 2023. Yes. And this is the detail of the test series. तो GATE और ESC की अगर बात करें तो this is the schedule for the test series for GATE and ESC and this is the schedule for SSC JEE. तो अलग अलग एग्जाम के लिए, SSC के लिए, GATE के लिए और ESC के लिए आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं. These tests are absolutely free, so you can follow this schedule. You can follow this schedule to attend all the classes, all the test series and get practice. This is my Unacademy profile. You can search this name on the Unacademy app or you can simply visit this link. You all can follow this profile. You will get the regular update. You will get the regular update notification about all my upcoming special free classes. तो free classes में हम लोग जो टॉपिक कवर करते हैं that are the transportation engineering. Transportation engineering का डिस्कशन करने वाले we will discuss about the surveying and we will also discuss about the RCC and CPM. These are my subjects जिनसे रिलेटेड आपको क्लासेस इस प्रोफाइल पे मिल जाएंगी. जो क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं, ऑल दो क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल, और सारी क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप सभी उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं. This is a Telegram group. So we have created a Telegram group for all of you, that is Unacademy, GATE and ESC CE. In this Telegram group, you will get all the PDFs of the YouTube classes and you are also going to get the regular updates about all my upcoming special classes. तो free classes के link आपको यहाँ पर provide कर दिए जाएंगे. So those who have not joined yet, they all can join this Telegram group just by visiting this link. This link is provided in the description box of this video. And these are the Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. आप सभी इन पेजेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं. सो आई होप यहाँ तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है. और आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले बेटा, दैट इज द ट्रांजिशन कर्व. दैट इज द ट्रांजिशन कर्व. तो बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व की, बात करेंगे ट्रांजिशन कर्व की, आप क्या क्या करने वाले हैं इसमें. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल के देखेंगे ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्या है. तो जो अब तक मैंने पढ़ रखा है, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, एंड दैट डिस्कशन वाज कि सर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अ सर्कुलर कर्व. आप रोड पे अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सर्कुलर कर्व, दैट इज समथिंग लाइक दिस. द प्रॉब्लम इज दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, एंड लेट्स से दिस इज योर आउटर एज
ऑफ द कर्व एंड दिस इज द इनर एज ऑफ द कर्व। ये डिस्कशन भी हम लोगों ने कर रखा है। अब ये आप सर्कुलर कर्व, ऑब्वियसली इसके पहले की अगर थोड़ी सी जियोमेट्री की बात करें तो अगर मैं स्ट्रेट को सर्कुलर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं तो तुम्हें देखने में समझ में आ रहा है देयर विल बी सम डिस्कम्फर्ट। ये जियोमेट्री अगर इस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आई एम कनेक्टिंग द स्ट्रेट पोर्शन डायरेक्टली विद द सर्कुलर, तो एक टेंजेंशियली और स्मूथली नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। क्या लगता है तुम्हें? स्ट्रेट वाला जो हमारा पाथ है दैट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट स्मूथली और टेंजेंशियली, किससे? सर्कुलर से। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत डिटेल में बात करने वाले। तो लेट्स से दिस इज योर सर्कुलर कर्व, दिस इज योर सर्कुलर कर्व एंड दिस इज योर स्ट्रेट पाथ, दिस इज योर स्ट्रेट एंड दिस इज योर स्ट्रेट। अब प्रॉब्लम क्या है, जस्ट बेसिक से समझते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे स्ट्रेट में अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, रेडियस अपना इन्फिनिटी रहने वाला है। यस, सिमिलरली अगर रेडियस इन्फिनिटी है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन दैट इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाई r दैट इज गोइंग टू बी 0। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r विल बी आल्सो इक्वल टू 0। और जब सुपर एलिवेशन की बात करें तो व्हेन देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो यहाँ पर कोई भी सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं होगी और हम प्रोवाइड कर देंगे ई मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल टू कैम्बर। ऐसा कल भी हम लोगों ने बात करा था अटेनमेंट में। यस, प्रॉब्लम ये है कि व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द सर्कुलर पाथ, जब हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो हियर यू विल फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी r, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी v स्क्वायर बाई r, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा तो वहां पर आपको डिजाइन करना पड़ेगा सुपर एलिवेशन, वहां पर डिजाइन करना पड़ेगा सुपर एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल एक व्हीकल को एनालाइज कर देते हैं। इफ अ व्हीकल इज मूविंग समथिंग लाइक दिस, अब अगर मैं ये सारे पैरामीटर्स छोड़ दो, केवल रेडियस की बात कर ले, अगर मैं रेडियस को इन्फिनिटी से r सडनली चेंज कर दूंगा तो ड्यू टू द चेंज इन द रेडियस देयर विल बी चेंज इन द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, देयर विल बी चेंज इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सारे चेंजेस सडनली होने वाले। यस, और जब ये सारे चेंजेस सडन हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ड्यू टू दीज चेंजेस देयर विल बी डिस्कम्फर्ट टू अवर व्हीकल, हमारे व्हीकल को डिस्कम्फर्ट होने वाला है। यस, मेरे पूरे सब्जेक्ट के डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं अपने यूजर की सेफ्टी को इंक्रीज करना चाह रहा हूं और रोड की इफिशियंसी को इंक्रीज करना चाह रहा हूं। यहां पर आपके यूजर को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, यहां पर उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अगेन इफ आई टॉक अबाउट द एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व, यहां पर बात कर लेते हैं। The parameter are going to be same. The radius will be equal to r, centrifugal acceleration will be equal to v square by r, and p is going to be mv square by r. और अगर e की बात करें तो e is going to be e design. E is going to be e design. The situation will be something like this. और just after the end of the circular curve आपका start हो रहा है straight portion, और straight में फिर से गेम बदल चुका है। Your r is going to be infinity. Centrifugal acceleration is going to be 0, p is going to be 0, and e is going to be e minimum that is equal to camber। मतलब ये ठीक नहीं रहेगा। क्या बोलते हो? ये ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। तो एक सर्कुलर और स्ट्रेट के बीच में मैंने क्या बोला, लिसन केयरफुली, नाउ वी विल प्रोवाइड अ कर्व। हम एक वेरिएबल रेडियस का कर्व प्रोवाइड कर देते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस दैट इज समथिंग लाइक दिस। ये ग्रीन कलर से बेटा जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट इज योर वेरिएबल रेडियस कर्व। यहां पर इसकी रेडियस फिक्स नहीं रहने वाली, हम लोग बात करेंगे भी कैसे होने वाला है। वी आर गोइंग टू चेंज द रेडियस ग्रेजुअली, और इसके बाद आपने प्रोवाइड करा दिस यू हैव प्रोवाइडेड रेड वन एज योर सर्कुलर कर्व। तुम डायग्राम को भी देखकर ध्यान से समझ पा रहे हो। जब मैंने स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में एक वेरिएबल रेडियस का कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं नहीं लग रहा है मैं अब इस स्ट्रेट और सर्कुलर को थोड़ा स्मूथली और टेंजेंशियली कनेक्ट कर पा रहा हूं। आई एम एबल टू कनेक्ट दिस स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द कर्व स्मूथली और टेंजेंशियली, यस और नो? ये ग्रीन कलर का जो कर्व तुमने बेटा प्रोवाइड किया, इसी ग्रीन कलर के कर्व को बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। इसी ग्रीन कलर के कर्व को आप बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। क्यों ऐसा बोला गया? बिकॉज देयर विल बी ट्रांजिशन, द रेडियस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूअसली चेंज। अब ये रेडियस चेंज होगी, तो वी आर प्रोवाइडिंग ट्रू ट्रांजिशन कर्व।
सर्कुलर कर्व के दोनों एंड पे आपने एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है, उसके बाद आप प्रोवाइड करने वाले स्ट्रेट पोर्शन, और ऐसा करने से मैंने देखा है कि हमारा जो ओरिजिनल सर्कुलर कर्व था वो शिफ्ट कर गया है, वो शिफ्ट कर गया है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एस से। तो वी विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, बट अभी बेसिक समझते हैं। तो जैसे ही मैंने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया, तो लेट्स टॉक अबाउट सर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व। यहां पर ट्रांजिशन कर्व की रेडियस क्या होगी, तो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। लेट्स से एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व के स्टार्टिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपने बोला सर एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व द रेडियस इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेडियस है। अबे स्ट्रेट जैसा ही कनेक्ट हो रहा है। रेडियस अगर इन्फिनिटी है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 0, p is going to be 0 and e will be equal to e minimum, e will be equal to e minimum। जैसे जैसे आप इस कर्व में आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे आप इस कर्व में लेंथ वाइज आगे बढ़ने वाले हैं, यू विल सी द रेडियस इज गोइंग टू बी डिक्रीज। आपने रेडियस को कंटिन्यूसली स्लोली डिक्रीज कर दिया है, और एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व, यहां पर अगर मैं बात करूं तो पैरामीटर्स विल बी समथिंग लाइक दिस, r इज इक्वल टू r। Centrifugal acceleration is going to be v square by r, centrifugal force is going to be equal to mv square by r, and E will be equal to E design, E will be equal to E design। सेम कहानी आप ऐसा फॉलो करेंगे दूसरे ट्रांजिशन कर्व में, जो सर्कुलर कर्व के एंड में आपने प्रोवाइड कर रखा है, जो सर्कुलर कर्व के एंड में आपने प्रोवाइड कर रखा है, सेम हम वहां पर भी ऐसा फॉलो करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक तरफ का एक्सप्लेन कर दिया। अब लिसन केयरफुली। अब मैं बोल रहा था कि सर व्हीकल मेरा स्ट्रेट में था, जैसे ही कनेक्शन हुआ स्ट्रेट और ट्रांजिशन का, स्ट्रेट और ट्रांजिशन का क्या देख पा रहे हैं आप, स्ट्रेट के कैरेक्टरिस्टिक्स सर ये थी, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रेट रीजन। और तुम्हें नहीं लगता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दीज टू कंडीशंस आर सेम। मतलब मेरा व्हीकल स्ट्रेट से ट्रांजिशन कर्व में एंटर कर गया है और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। दैट मींस देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू अवर व्हीकल। हमारे व्हीकल को अभी पता ही नहीं चल रहा, कैसे पता चल जाएगा जब सारे पैरामीटर सेम ही है। अब जैसे जैसे इस ट्रांजिशन कर्व की लेंथ इंक्रीज कर रही, एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज गोइंग टू बी इंक्रीज, वी आर चेंजिंग द रेडियस ग्रेजुअली। आप इस रेडियस को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व वी हैव अचीव्ड दिस पैरामीटर, वी हैव अचीव्ड दिस पैरामीटर। तुम्हें नहीं लगता बेटा जहां पर ट्रांजिशन कर्व खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट होगा आपका सर्कुलर कर्व, उसके बाद स्टार्ट होगा सर्कुलर कर्व, और सर्कुलर कर्व और एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू बी सेम। इन दोनों को आप कंपेयर करके देख लो, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू बी सेम। अगेन व्हीकल ने जितना भी सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड था ड्यूरिंग दिस लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, व्हीकल हैव चेंज ऑल दियर पैरामीटर्स ग्रेजुअली। अब वो इस सर्कुलर कर्व में मूव कर जाएगा। इस पूरे सर्कुलर कर्व में अब कुछ भी चेंज होने वाला नहीं, बिकॉज द रेडियस इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट दिस कर्व, द रेडियस इज गोइंग टू बी सेम थ्रू आउट दिस कर्व। तो अब कुछ नहीं चेंज करेंगे, पूरा ई जितना रिक्वायर्ड है ई डिजाइन मेंटेन करके रखेंगे, और फिर यहां से गेम करेंगे वही, वी विल डिजाइन अनदर ट्रांजिशन कर्व टू चेंज ऑल दीज पैरामीटर्स ग्रेजुअली। क्लियर है बेटा? तो बात कर लेते हैं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे डिस्कस कर देता हूं कि सर व्हाट इज द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कंसेप्ट पार्ट वी हैव कवर्ड। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपने लिखा इट इज प्रोवाइडेड in between the straight and circular to change radius gradually। आपने रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करने के लिए स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में, स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में जो कर्व प्रोवाइड किया उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व। तो इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है,
what are the various objective? What are the various objective for providing the transition curve in between the straight and circular? तो अभी आपने बोला सर अगर रेडियस ग्रेजुअली चेंज होगी तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो v स्क्वायर बाई आर था वो भी तो ग्रेजुअली चेंज होगा, वो भी तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी जर्क. तो अगर आपने एक्सेलरेशन को सडन चेंज कर दिया देयर विल बी जर्क. जैसा पुराना एग्जांपल हम लोग आप बाइक या स्कूटी में देखिए या किसी भी व्हीकल में देखिए, चेंज योर एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन को चेंज करिए, जो कुछ भी आपको फील होता है उसी को जर्क बोलते हैं. तो आप डिफाइन में ऐसे करते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी द जर्क. और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है इस चेंज की वजह से आपको कोई भी डिस्कंफर्ट होने वाला है. यस और नो? इस चेंज की वजह से आपको कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा बिकॉज ऑल द थिंग्स आर चेंजिंग ग्रेजुअली. और बेटा अगर ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जो हमारा P हुआ करता था mv स्क्वायर बाई आर, ये भी तो ग्रेजुअली ही इंट्रोड्यूस होगा. दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इन द कर्व ग्रेजुअली. अब स्ट्रेट में आउटर और इनर एज जो रोड के थे दैट विल बी एट द सेम लेवल, बट सर्कुलर कर्व में आउटर विल बी एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर. अगर मैं स्ट्रेट और सर्कुलर को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता तो व्हाट अबाउट द आउटर एज? आउटर एज के तो हालात ऐसे होते हैं ना, ये होते हैं आउटर एज के हालात. अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ आरएल, तो यहां तक स्ट्रेट था, कोई दिक्कत नहीं थी. और अब आपने यहां पे क्या कर दिया, एलिवेटेड कर दिया आउटर एज को. तो इससे क्या लगता है तुम्हें? देयर विल बी डिस्कंफर्ट, टू आवर व्हीकल. यस और नो? तो अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं ये भी चाहता हूं कि मैं E को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करूं. तो द सिचुएशन विल, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन पे, हम लोगों ने डिस्कस किया था. यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं ट्रांजिशन कर्व वी आर प्रोवाइडिंग टू कनेक्ट स्ट्रेट एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड स्मूथली, बोलो, या फिर इसको बोल दे टेंजेंशियली. स्मूथली कनेक्ट करने के लिए आपने यूज कर लिया ट्रांजिशन कर्व को, स्ट्रेट और सर्कुलर को. और जब कुछ ना समझ में आए तो ये तो अपना चलेगा ही. एस्थेटिक पर्पस से तो सुंदरता तो बढ़ ही रही है भाई. देख लो ना यार, डायग्राम को ध्यान से देख लो. जब ट्रांजिशन कर्व नहीं था तो देखने में कम अच्छा लग रहा था, क्या बोलते हो? जब आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया तो आपने स्ट्रेट और सर्कुलर को टेंजेंशियली स्मूथली भी कनेक्ट कर दिया है और देखने में भी अच्छी लग रही रोड की जियोमेट्री. यस और नो? तो आई होप द बेसिक कंसेप्चुअल डिटेल रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ट्रांजिशन कर्व की इतनी डिटेल सभी को क्लियरली समझ में आ गई है. यस और नो? अब मुद्दा आता है सर, ट्रांजिशन कर्व के कौन कौन से शेप्स अवेलेबल हैं? तो यहां से भी आपके सवाल आते हैं एग्जाम में. तो व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व? शेप्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. तो यहां पे बेसिकली तीन तरीके के शेप्स की हम लोग बात करने वाले हैं. वी विल टॉक अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ शेप. तो वी कैन प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व इन द शेप ऑफ स्पाइरल और क्लोथाइड, जिसको आप बोलते हैं स्पाइरल और क्लोथाइड शेप यूज कर सकते हैं. सेकेंड इज गोइंग टू बी बर्नौलीज लेमिस्केट कर्व. And third is going to be your cubic parabola. So these are the three shapes available which we can use in the case of road as a transition curve shape. सर एक बार जरा दिखा दीजिए कैसे दिखते हैं कर्व. तो एक ही डायग्राम में सारे दिखा देता हूं, लिसन केयरफुली. तो फॉर एग्जांपल if I talk about the Bernoulli, if I talk about the spiral or clothite, so this will be the shape. Just wait. This will be the shape of spiral or clothite.
So this is going to be your number 1, spiral or clothied. Sir, if I talk about the Bernoulli's lemniscate, the shape of the Bernoulli's lemniscate will be something like this. The shape of the Bernoulli's lemniscate, that will be something like this. And if I talk about the cubic parabola, the shape is going to be something like this. So these are the 3 shapes available that we can use. In the case of रोड के केस में 3 शेप्स अवेलेबल है. ऑब्वियसली किस शेप के थ्रू हम कंस्ट्रक्शन करने वाले फील्ड में, ये डिपेंड करेगा जिसका सेटिंग आउट वर्क इजी होगा, जिसको फील्ड पे लोकेट करना इजी होगा. यस, तो थ्योरेटिकली तो आप बोल रहे हैं सर अलग अलग तरीके के कर्व हैं, बट तुम्हें नहीं लगता फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, अगर ये डेविएशन एंगल कम है, द बिहेवियर ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कर्व इज गोइंग टू बी सेम. ये तो एक ही डायग्राम में मैं तीनों दिखा रहा हूं. तो फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल द बिहेवियर ऑफ द ऑल द 3 शेप्स विल बी नियरली इक्वल टू. क्लियर है बेटा? तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि ठीक है ये अलग अलग शेप्स अवेलेबल हैं, बट द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, द आइडियल शेप, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है, आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व. तो ट्रांजिशन कर्व के आइडियल शेप की अगर बात करें तो दैट इज द स्पाइरल और क्लोथाइड. स्पाइरल और क्लोथाइड शेप को आप यूज करने वाले, दैट इज द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व. सर ये आइडियल क्यों है? सवाल ये आता है सर ये आइडियल क्यों है, व्हाट आर द रीजन व्हाई यू आर सेइंग द स्पाइरल और क्लोथाइड कर्व इज द आइडियल शेप फॉर द ट्रांजिशन कर्व. मैं ये चाहता हूं कि मेरा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो. यस, तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सेम रेट से चेंज हो रहा है थ्रू आउट द कर्व, तो पूरे कर्व में आप देख रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट. और अगर ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट, देयर विल बी नो जर्क. यस, सबसे आसान बात है, इस सबसे अलग बात एक आपको ये भी समझनी है कि अगर आप स्पाइरल और क्लोथाइड की बात करते हैं तो इसके कैलकुलेशंस जो हैं वो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशंस एंड इजी टू ले आउट. तो अभी आपने बोला सर कि फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल द बिहेवियर ऑफ ऑल द 3 शेप्स ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी नियरली सेम. उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. यस और नो? तो दैट्स व्हाई आप आइडियल शेप जो बोल रहे हैं स्पाइरल बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसके रीजन में एक्सप्लेन कर रहा हूं. एंड सिमिलरली थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज द length of the spiral curve is inversely proportional to the radius of the curve, where ls is your length of spiral curve. तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दैट इज द नोट पॉइंट फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल. The behavior of all 3 curves will be nearly same. So we will provide as the spiral curve as the transition curve in the case of road. तो अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया till now I discussed about the what is the transition curve, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व की जरूरत क्या पड़ी आपको, और कुछ थ्योरेटिकल बातें डिस्कस कर लिया आपने. व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व, और उस आइडियल ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट है दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय द स्पाइरल और क्लोथाइड कर्व. So that means we are saying the ideal shape of the transition curve in the case of road construction that will be equal to spiral or clothite, and these are the
explanation for all the transition curve detail. I hope the discussion is clear to all of you. अब इसमें तुम्हें करना क्या था, एक पार्ट आपके ट्रांजिशन कर्व का ये था, एक पार्ट आपके ट्रांजिशन कर्व का ये था, सेकेंड पार्ट जो बेटा यहां पे आता है दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, और इससे तुम्हें मिलता है 2 नंबर का सवाल, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो देखो, whenever we will talk about the length of the transition curve और length of the spiral curve, हम हमेशा इस बात को ध्यान रखने वाले, क्योंकि यहां पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना है उस लेंथ में। जो आपने बोला था सर स्ट्रेट के एंड के बाद से एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्कुलर कर्व तक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, यस और नो। तो थ्रू आउट दिस लेंथ द वेरियस रिक्वायरमेंट यू हैव टू फुलफिल, और सभी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल द ट्रांजिशन, बेस्ड ऑन ऑल द रिक्वायरमेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो व्हेनेवर वी विल टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ, इट विल बी द मैक्सिमम ऑफ 3 क्राइटेरियाज। तो टोटल 3 क्राइटेरिया से हम लोग निकालने वाले हैं लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। This is very important topic. You can expect a 2-mark problem. You can expect a 2-mark problem from this topic, that is the length of the transition curve. तो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप एक स्पाइरल कर्व की, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालते हैं। तो पहला क्राइटेरिया आपने बोला बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन में सडन चेंज नहीं होना चाहिए, उसका जो रेट है दैट शुड बी कांस्टेंट। तो इसके बेसिस पे बेटा हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, चलो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यू विल गेट। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया इज गोइंग टू बी v क्यूब अपॉन CR, v क्यूब अपॉन CR। तो यूनिट्स का ध्यान रखना, v हम यहां पर लेने वाले हैं मीटर पर सेकेंड में, c इज गोइंग टू बी योर जर्क, c इज गोइंग टू बी योर जर्क, और इसकी आपको यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड क्यूब, मीटर पर सेकेंड क्यूब, यस। एंड r इज द रेडियस ऑफ द कर्व, r इज द रेडियस ऑफ द कर्व, एंड दैट विल बी टू इन मीटर। तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कुछ नहीं करना होता है, 2 क्रॉस सेक्शन ले लो, इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में आपको चेंज इन जर्क को डिफाइन करना होता है बेसिकली, यस। और अगर c की वैल्यू नहीं पता है तो एज पर IRC आपसे डिस्कस किया गया था, जर्क वी कैन डिफाइन, वी कैन कैलकुलेट, दैट इज गोइंग टू बी 80/75 प्लस b, 80/75 plus b, and do remember for the calculation of jerk in this formula this v is in kmph, ये गलती मत करना। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जब आपने निकाली है बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इन दैट द v इज इन मीटर पर सेकेंड। और अगर जर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो जर्क की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। IRC has suggested a formula and that is going to be, it's the unit of jerk you will get from here, that is going to be meter per second cube, that is going to be meter per second cube. To use this empirical relation to find out the value of jerk, for that you just need to know the design speed of the road, that is v in kmph। और एक जनरल अगर बात करें तो जो c की वैल्यू होती है जनरली 0.5 से 0.8 मीटर पर सेकेंड क्यूब तक वेरी करती है। The value of the c is going to be vary from 0.5 to 0.8 meter per second cube. So this length we have calculated based on the rate of change of centrifugal acceleration criteria. but this is not going to be final length. This is not going to be the final length of the transition curve. So how we can find the final length of the transition curve? So for that we will see about the another conditions also. तो अगले conditions की बात कर लेते हैं। तो आपने बोला सर इन द केस ऑफ सुपर एलिवेशन एक रिक्वायरमेंट मेरी ये भी थी
कि बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, और साथ साथ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कर्व के केस में एक्स्ट्रा वाइडनिंग को। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। चलो बेसिक बता देता हूं कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल कर्व होता है तो कुछ वहां पर एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वो एक्स्ट्रा विड्थ कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इन डिटेल। हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। और बेटा यहां पर आपने बोला लेट्स से 1/n इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, दैट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। अब उस लेंथ में कैसे प्रॉपर लेंथ सुपर एलिवेशन को अचीव करें, तो फॉर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। तो कैम्बर तो दोनों में हटाना था, बट एक्स्ट्रा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन थी। हम लोगों ने पेमेंट को रोटेट किया था, रोटेशन अबाउट द सेंटर के अबाउट पेमेंट को रोटेट किया था। और दूसरी चॉइस थी व्हेन वी हैव रोटेटेड, तो रोटेशन अबाउट इनर एज के अबाउट आपने रोटेट किया था टू अटेन द सुपर एलिवेशन। तो अगर इस फॉर्मूले में यहां पे फॉर्मूले की बात करूं तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज गोइंग टू बी NEW प्लस WE by 2, NEW plus WE by 2 in the case of when we are rotating the pavement about the center. Obviously based on the same concept अगर मैं यहां पे बात करूं तो this is going to be NEW plus WE, where W is your width of carriageway, this is going to be, और इसकी बातें आपको पता है एज पर IRC कितना विड्थ होगा कैरिजवे का, ये बातें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। यस, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और यहां पर WE जो है दैट इज गोइंग टू बी योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, रिक्वायर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब मुद्दा आता है कि सर ये n की वैल्यू क्या होगी, सर ये नहीं समझ में आ रहा, तो लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल N। तो 1/n क्या था, 1/n हम लोगों ने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। और अगर मैं IRC के हिसाब से बात करूं बेटा एज पर IRC, तो n की आपको 3 वैल्यू बताई गई है। जनरली ये सवाल में गिवन होता है n इज गोइंग टू बी 150, n इज गोइंग टू बी 100 एंड n इज गोइंग टू बी 60। दिस इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के केस में जो आपके कैपिटल N की वैल्यू है सजेस्टेड बाय द IRC दैट इज 150। इफ आई टॉक अबाउट द 100, दिस इज इन द केस ऑफ बिल्ट अप एरिया। तो बिल्ट अप एरिया के केस में वैल्यू सजेस्ट की गई है एंड n इज इक्वल टू 60 फॉर हिली टेरेन। तो जनरली ये n की वैल्यू आपको सवाल में गिवन होगी। अगर नहीं गिवन है तो वी कैन कंसीडर एज पर द IRC रिकमेंडेशन, एज पर द IRC गाइडलाइन। तो IRC गाइडलाइन के बेसिस पे आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। तो दो क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया, एक बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया, और दूसरे क्राइटेरिया की आपने बात कर ली सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट की, और तीसरा यहां पर आपको गाइडलाइन दी गई है दैट इज द इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो इंपीरिकल फॉर्मूला IRC ने आपको बता रखे हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला LS इज गोइंग टू बी 2.7 V स्क्वायर बाई R एंड सेकेंड फॉर्मूला LS इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, दिस फॉर्मूला दे प्रोवाइडेड फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। प्लेन और रोलिंग टेरेन के केस में आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंड इन द केस ऑफ हिली टेरेन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी V स्क्वायर बाई R। डू रिमेंबर
इन इंपीरिकल फॉर्मूलों में दोनों जगह ये जो आपको v दिख रहा है दैट इज द स्पीड एंड दैट टू इन kmph, ये स्पीड आप लेने वाले हैं kmph में। तो वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द 3 क्राइटेरिया। टोटल 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने लेंथ निकाला। एक था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एक था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का गेम था। सेकेंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और थर्ड हम निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द इंपीरिकल फॉर्मूला, बेस्ड ऑन द इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा तो फाइनल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, final length of the transition curve, that is LS, will be equal to maximum of these 3 criteria 1 2 3। maximum क्यों select कर रहे हैं भाई? Why we are selecting the maximum? Because we want to satisfy all 3 conditions। तो सुपर एलिवेशन, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सभी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम। लेट्स से आपने कहीं पे लेंथ निकाली एंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट क्राइटेरिया यू आर गेटिंग द लेंथ इज एज 35 मीटर। बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया, लेट्स से दिस लेंथ इज 50 मीटर एंड लेट्स से दिस लेंथ इज 40 मीटर। तो एज पर द डिस्कशन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 50 मीटर एज अ लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। अगर मैं 35 या 40 प्रोवाइड कर देता, लेट्स से इफ आई एम प्रोवाइडिंग द 40 मीटर लेंथ, अगर मैं 40 मीटर लेंथ प्रोवाइड कर रहा हूं तो इस 40 मीटर की लेंथ में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो, उसके लिए जितनी लेंथ रिक्वायर्ड थी वो लेंथ तो आपने प्रोवाइड कर रखी है। बट फॉर अटेनिंग द प्रॉपर सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग, द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दैट वाज रिक्वायर्ड दैट वाज 50 मीटर। और अगर आप बेटा 40 मीटर प्रोवाइड कर रहे हैं तो द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने वाली है, और अगर नहीं होगा ऑब्वियसली इन दैट केस देयर विल बी डिस्कम्फर्ट। That's why we are saying we will always provide the maximum of all these 3 criteria। इन तीनों क्राइटेरिया का मैक्सिमम आप प्रोवाइड करेंगे एज अ लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व और एज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोगों ने बेटा बात किया था, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ये भी आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि whenever we are going to provide the transition curve in between the straight and circular, स्ट्रेट और सर्कुलर के बीच में जब आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया था तो यू हैव ऑब्जर्व सम शिफ्ट, या आपने शिफ्ट की बात करी थी, यू हैव ऑब्जर्व सम शिफ्ट इन द केस ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के केस में आपको ये शिफ्ट दिखा था क्योंकि आप स्ट्रेट और सर्कुलर को स्मूथली और टेंजेंशियली कनेक्ट करना चाह रहे थे। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस शिफ्ट, इस शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? तो वी कैन कैलकुलेट द शिफ्ट बेटा डायरेक्टली, दैट विल बी इक्वल टू ls square upon 24r। that shift is going to be ls square upon 24r, where ls is going to be your length of the transition curve, length of the spiral transition curve, and r is the radius of circular curve, radius of curve, and that too will in meter। तो ये भी आप मीटर में लेने वाले, तो यू कैन कैलकुलेट द शिफ्ट, कितना शिफ्ट आया, कितना शिफ्ट हुआ ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करने की वजह से, दैट इज गोइंग टू बी दिस मैग्नीट्यूड। तो ये पूरा डिस्कशन था बेटा, दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। तो वी हैव डिस्कस व्हाट इज द ट्रांजिशन कर्व, व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, what are the different shapes of the transition curve that we can provide in the case of highway। We have also discussed ki what will be the length of the transition curve, or for that we have discussed the different criteria, and finally we have calculated the length of the transition curve that is going to be fulfill all your requirements। आपके रोड पर यूजर की, व्हीकल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, the length is will be sufficient, and at the last we have discussed about the shift of the transition curve। I hope अभी आपको ट्रांजिशन कर्व से रिलेटेड सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो?
यस, सो कंसेप्ट पार्ट इज ओवर नाउ। अब हम लोग करने वाले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन कर्व। और गेट में सवाल आएगा बेटा, गेट में सवाल आता है आपका 2 नंबर का। और अगर आप किसी एई या जेई का एग्जाम देंगे, कन्वेंशनल की अगर बात कर लें, कन्वेंशनल की बात कर लें और इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात कर लें कन्वेंशनल में, तो ये सवाल आपको मिलता है 10 to 15 मार्क्स का। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन 10 to 15 मार्क्स। तो लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व on a plain terrain and the shift using following data। तो कुछ डेटा आपको प्रोवाइड कर रखा, उस डेटा के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी दो चीजें, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड व्हाट विल बी द शिफ्ट। तो इन्होंने दे रखा डिजाइन स्पीड इज गिवन एज 65 kmph, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, और इसकी रेडियस आपको दे रखी गई है, दैट इज गिवन एज आई थिंक 220 मीटर। तो लेट मी चेक द डेटा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, आंसर नहीं मैच करेगा। अलाउबल रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड दैट इज गिवन एज 1 in 150। तो 1 in n के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया था और ये दे रखा गया, दैट इज द वैल्यू गिवन टू यू, ठीक है। द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट, इन्होंने ये भी बोल रखा है, द पेमेंट रोटेशन जो दे रखा है दैट इज अबाउट द सेंटर। पेमेंट रोटेशन जो किया आपने दैट इज अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। पेमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग and that is given as 7.5 meter, that is given as 7.5 meter। so this is the question and this is the data। तो ये क्वेश्चन आप सभी को दिया गया, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई एम प्रोवाइडिंग यू दिस क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं एक बार होम असाइनमेंट के लिए। तो वॉट एवर कंसेप्ट वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व के जितने भी कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है, ट्राई टू अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट, और इन कंसेप्ट के बेसिस में आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्लास में भी सॉल्व करेंगे, बट फर्स्ट टेक योर अटेम्प्ट, आप सभी को अटेम्प्ट लेना है जिससे आपने जो भी कंसेप्ट पढ़े उनको आप अप्लाई कर पाए। तो ट्राई करना भाई सभी को। यस, एवरीवन इज गोइंग टू ट्राई दिस क्वेश्चन, और इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द डिस्कशन, डिटेल सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। तो फर्स्ट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया, एंड दैट इज गोइंग टू बी LS इज इक्वल टू VQ अपॉन CR। V is given to you, R is given to you, the problem is with C। तो C की वैल्यू, जर्क की वैल्यू नहीं दे रखी, फॉर दैट वी कैन यूज द एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट इज 80 अपॉन 75 प्लस कैपिटल V। to calculate the value of C and find the length based on the first criteria, that is the rate of change of centrifugal acceleration criteria। Second condition, the condition is clearly given to you in the question, the rotation is done about the center। So length of the transition curve is going to be NEW plus WE by 2, where N is given as 150, small e was the super elevation, small e was the super elevation, and how to calculate the super elevation, how to design the super elevation, ये सारी बातें हम लोगों ने सुपर एलिवेशन में डिस्कस कर रखी हैं। All that points we have discussed in the super elevation। तो E design is going to be V square upon 225R। Just check, follow the IRC guideline,
वी विल कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन मींस n मेरे को पता है, स्मॉल e मेरे को पता है, w plus we width including the carriageway, width including the extra widening, that is directly given in the question, that is going to be 7.5 meter. So NEW plus WE by 2. Now all the terms are known to you. You can calculate the length based on the super elevation and extra widening criteria. In the question, the terrain condition is directly given to you. That is the plane. So for plane condition, we can apply the empirical formula, and that is going to be LS is equal to 2.7 capital V square by R. यहाँ पर R भी पता है, कैपिटल V भी पता है, और जो भी इन तीनों में से आप लेंथ निकालने वाले हैं, मैक्सिमम आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, इनमें से जो भी मैक्सिमम होने वाला है, दैट विल बी योर द फाइनल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑन द रोड. और जब आप लेंथ निकाल लेंगे तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द शिफ्ट, एंड शिफ्ट इज गोइंग टू बी LS स्क्वायर अपॉन 24R. LS यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड, R की वैल्यू आपको दे रखी गई है. You can also calculate the shift in meter. Yes. So this approach you have to follow to try to solve the question. अगर नहीं होगा तो obviously I am going to explain the question. I am going to explain the calculation part of this question in the next class. तब तक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले. क्लियर है? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हम लोगों ने. So today we have discussed very important topic, and that is the transition curve. सुपर एलिवेशन की हम लोग बात कर चुके थे. अब एक डिस्कशन हमारा बनता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द सम डिस्कशन रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस. तो ये सारे डिस्कशन हमारे अगली क्लास के पार्ट है. आज की क्लास का डिस्कशन यही था. तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो यू कैन अलाउ टू आस्क योर डाउट्स एंड क्वेरी. तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस बैचेस, अगर आप प्लस बैचेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं अनअकैडमी के साथ, तो यस, यू कैन कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस फॉर गेट एंड ESE. जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट, सेलेक्ट द एग्जाम यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, देन सेलेक्ट द ड्यूरेशन यू वांट टू टेक, then select the type of subscription you want to take. So you can go for the plus, you can go for the iconic. Then select the duration, so you can go for 12 month or 18 month if you are a college pass out student. और अगर आप कॉलेज में है, अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है, you can go for the 24 month subscription. The long term subscription is going to be economical for you, as you can see. And here you all can use my referral code, that is KKS10. आप सभी इस कोड को यूज कर सकते हैं. Just by applying this code, you will get 10% off on your subscription cost, and these are the price after the discount. Same process you can follow in the case of Iconic. Iconic के लिए भी आप same process follow कर सकते हैं. So you can go for the 12 month or 24 month subscription in the case of Iconic. So make sure whenever you are going to complete your subscription process with Unacademy, you are using this code, that is my referral code, that is KKS10, to avail 10% off on your subscription cost, and these are your price for the Iconic subscription after the discount. So in this way, in steps को follow करके you all can complete your subscription process, and you can start your preparation by joining the batches for GATE 2022 and GATE 2023. This is the Telegram group. तो बहुत सारे बच्चों ने, जिन भी लोगों ने अब तक इस Telegram group को ज्वाइन नहीं किया है, all of you can join this Telegram group. So you can search this Telegram group, that is Unacademy GATE and ESE CE in the Telegram, or you can directly visit this link, and this link is also provided in the description box of this video. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है. यू विल गेट द PDFs ऑफ द ऑल द यूट्यूब क्लासेस. तो सारे PDF आपको यहाँ पर मिलने वाले, एंड यू विल ऑल्सो गेट द लिंक ऑफ ऑल माई अपकमिंग स्पेशल फ्री क्लासेस. और अभी हम लोग फ्री क्लासेस में कवर कर रहे हैं हाईवे और सर्वेइंग के. हाईवे और सर्वेइंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. PYQ वी आर डिस्कसिंग. किस एग्जाम के PYQ डिस्कस कर रहे हैं? गेट और ESE के. तो यस, डू ज्वाइन दिस ग्रुप. आई विल शेयर द क्लास लिंक. आपको सारे क्लास के लिंक आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जहां से आप उन क्लासेस को इजिली अटेंड कर सकते हैं. These are the some best channels from where you can start your learning. You can also recommend these channel to your other branch friends so that they can also start preparing for the various exam. So yes, you can follow this channel.
सिविल और केमिकल के लिए आपका चैनल है दैट इज अनअकैडमी गेट सी एंड CH। तो इस चैनल पर अभी आपके 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक तो 3 to 4 PM हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। तो 3 to 4 PM वी आर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ हाईवे, और 8:30 PM से 9:30 PM 8:30 PM से 9:30 PM हम लोग डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग। तो आप इन सभी यूट्यूब क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं। एंड चैनल इज गोइंग टू बी अनअकैडमी गेट C and CH। यस, तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this was all about for the today's class. So do like, share the content, subscribe the channel. To keep learning. Thank you everyone.